Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 11th students. In this video lecture, we will learn about the C3 cycle or Calvin cycle. So first of all, let's introduce about the chemical reaction in C3 cycle. C3 cycle or Calvin cycle. It was first of all discovered by Melvin Calvin. So, who discovered C3 cycle? Melvin Calvin. It should be your point and maybe asked in the examination. He used Melvin Calvin or the Calvin used green alga for his experiment. He put the green alga in sunlight and immediately withdraw the overall experiment into shady area in order to check the intermediate product only, because if overall reaction take too short a time, then carbon dioxide in the reaction cannot able to get the proper time to reduce into the glucose. अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और उससे पहले ही कैल्विन ने पूरा एक्सपेरिमेंट को विथड्रॉ कर लिया शेडी एरिया में। इससे क्या हुआ कि ग्लूकोज तो बन नहीं पाया, साथ साथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के ही एल्गी में रह गया। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या किया, शेडी एरिया में एक्सपेरिमेंट को रख दिया और उसके बाद ग्रीन एल्गा को किल किया इथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल में किल किया। किल्ड एल्गा इन मीथेनॉल, एल्गा को मीथेनॉल में किल कर दिया और एक्सट्रैक्ट क्या किया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक्सट्रैक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। So finally he concluded that every green plants, every kinds of green plants has an intermediate product as phosphoglyceric acid before glucose formation. If phosphoglyceric acid get the chance, then it will convert into the glucose. But before getting chance, the Calvin withdraw the overall experiment into the shady area so that the all phosphoglyceric acid cannot be converted to the glucose. Some phosphoglyceric acid can extract it, and the finally concluded that the glucose, before glucose formation, every plant form the phosphoglyceric acid. Keep in mind, you must have to write overall lecture in your copy. He observed the three different steps of phosphoglyceric acid and the glucose formation. He also introduced the overall C3 cycle occurs in basic three steps. So your heading should be the steps of C3 cycle. Steps of C3 cycle. Listen, steps of C3 cycle. One by one, you must have to write in your copy. The first step is carboxylation. The second step is reduction, and third step is regeneration. What happened in carboxylation? Listen carefully. Actually, the C3 cycle is, this is the in single C3 cycle, the single time carboxylation, single time reduction and single time regeneration happen. But overall, for the complete synthesis of glucose, the 6 C3 cycle repeated. It means 6 time carboxylation, 6 time reduction and 6 time regeneration required. Keep in mind, it should be note down by you. This is the for single C3 cycle. For single C3 cycle. For single C3 cycle, the glucose remain incomplete. For the complete glucose formation, for the one molecule of glucose formation, there is a need of at least 6 carboxylation, 6 reduction and 6 regeneration.
One by one I will introduce about the each and every process of C3 cycle. Now back to the carboxylation. Point 1, the carboxylation. Process in which carbon dioxide fixation occurs in a biochemical reaction called carboxylation. यानी कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, बाहर से उड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कोई पकड़ के सिस्टम में या रिएक्शन में इन्वॉल्व कर दिया, पूरा प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन. तो होता क्या है, द प्लांट दैट गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बट दैट कार्बन डाइऑक्साइड cannot be trapped by the any substances of the plants. Plants has very special kinds of substances, that is 5 carbon compound that help to trap the carbon dioxide. Carbon dioxide cannot easily identify in the system. उसको हम सिस्टम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 99% यही दोनों मिलकर हो गए, बाकी 1% में सारी गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड को छांट पाना आसान नहीं है. तो प्लांट कैसे पहचानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करना है? ध्यान से सुनिए. प्लांट्स हैज द रूबिलोज बाइफॉस्फेट, the 5 carbon compound ribulose biphosphate. This help to identify the carbon from the atmosphere. ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, ये आइडेंटिफाई करता है. तो इसी वजह से रूबुलोज बाइफॉस्फेट को बोलते हैं, ये क्या है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट. इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पहले यही कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है. उसके बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ रूबुलोज बाइफॉस्फेट रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. And this overall chemical reaction proceed through the enzyme Rubisco. The enzyme Rubisco. Ribulose biphosphate, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. Ribulose biphosphate carboxylase oxygenase enzyme help to convert the 1 molecule of RUBP with 1 molecule of carbon dioxide to 2 molecule of phosphoglyceric acid. Let's check the total number of carbon and total number of phosphorus in the reaction. For the RUBP there is a need of 5 carbon and 2 phosphorus. It is 5 carbon 2 phosphorus compound. Ribulose biphosphate carboxylase, ribulose biphosphate is the 5 carbon compound, 1 2 3 4 5. Carbon number 1 has phosphorus and 5 has phosphorus, so it has total 5 carbon and 2 phosphorus, and 1 carbon comes from atmosphere. Listen, 1 carbon comes from atmosphere. This is the 1 carbon that comes from atmosphere to form the overall 6 carbon compound. The 6 carbon compound, 3 in one PGA and 3 in other PGA. The 2 molecule of PGA can be represented as this. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये 2 molecule of PGA, कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस, कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस है. ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, फास्फोरस. पहला मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस किसके साथ रिएक्ट है, कार्बन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट PGA, और ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस कार्बन नंबर 3 ऑफ सेकंड PGA. तो ये 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गए. इसी वजह से इसको बोलते हैं 3 PGA. ये क्या है, 3 PGA. ये क्या है, 3 PGA. 3 PGA क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस है, इसलिए 3 PGA बोलते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ऑफ फास्फोरस कितने हैं, 1 and 2, यानी कि 2 फास्फोरस. इस केमिकल रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट साइड में चेक करते हैं, तो इधर कितने फास्फोरस और कितने कार्बन है, 5 कार्बन और प्लस 1 कार्बन, 6 कार्बन हो गया. 2 फास्फोरस उधर 2 फास्फोरस. तो यहां से हमारा क्या बन गया,
2 molecule of phosphoglyceric acid, and this chemical reaction is known as the carboxylation. Carboxylation is over. For the single molecule of carbon dioxide synthesis, the 6 molecule of, listen, 6 molecule of RUBP and 6 molecule of carbon dioxide involved to form the 12 molecule of phosphoglyceric acid. ये आप दिमाग में रखते जाइए. एक C3 साइकिल में एक रूबुलोज बाइफॉस्फेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं. 6 के लिए क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इतनी बातें क्लियर हुई. अब आते हैं, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट प्रोसेस, द रिडक्शन. 2 molecule of phosphoglyceric acid. This is the 2 molecule of phosphoglyceric acid having 3 carbon and 2 phosphorus get reduced. कैसे रिड्यूस होगा? पहले 2 ATP अपने आप को ब्रेक करेगा किसमें? 2 ADP में, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंट्रीब्यूशन करेगा. कैसे? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पहले कीजिए और दूसरा कार्बन पे यहाँ पे चिपक जाएगा. कार्बन नंबर 1 पे, इस पे भी खाली है, इस पे भी खाली. देखो, इसका भी कार्बन नंबर 1 खाली, इसका भी कार्बन नंबर 1 खाली है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक फास्फोरस, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया. 2 ATP 2 ADP में ब्रेक होगा तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे, तो एक एक कार्बन पे जाके चिपक जाएंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, और वो हो जाएगा डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो इसके बाद क्या बनेगा? डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो इस पे कार्बन नंबर 3 पे तो फास्फोरस रहेगा ही रहेगा, कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फोरस हो गया. तो अब इसको क्या बोलेंगे? 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है 1 and 2, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितना बना? 2 मॉलिक्यूल. टोटल कार्बन को भी काउंट कर लेते हैं और टोटल फास्फोरस को भी. कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन. फास्फोरस कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 4 फास्फोरस. चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड का कार्बन और प्रोडक्ट साइड का कार्बन. रिएक्टेंट में कितने कार्बन? ये कितने कार्बन थे? 3 कार्बन 2 फास्फोरस, यानी कि ओवरऑल एक में 3 कार्बन थे. ठीक है, ये 6 कार्बन होगा, सॉरी 6 कार्बन एंड 2 फास्फोरस. देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन 2 फास्फोरस, 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर. इधर देखो 2 फास्फोरस है, ये 4 फास्फोरस है. कहां से 2 फास्फोरस आया? ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 ATP ब्रेक हुआ तो इसको मिल गया 4 फास्फोरस हो गया. ठीक है, अब आगे के स्टेप में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल NADPH. ध्यान दो, ये 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना. जब 6 रिपीटेड साइकिल होगा तो क्या बनेगा? यही 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल NADPH ब्रेक होगा. 2 मॉलिक्यूल NADPH ब्रेक होगा. किसमें ब्रेक होगा? 2 मॉलिक्यूल NADP पॉजिटिव आयन. और ये क्या करेगा? इन दोनों में से एक एक फास्फोरस निकाल देगा, यानी कि 2 इनऑर्गेनिक फास्फोरस निकल गया. ये फिर से इसके जैसा कंपाउंड बना लेगा, लेकिन अब वो एल्डिहाइड बन गया. एसिड से एल्डिहाइड वही रिडक्शन. ठीक है, तो आगे क्या होगा? ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, इतनी बातें रखो. 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया. इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एंड 2 फास्फोरस. अब इधर देखो 6 कार्बन 4 फास्फोरस था, उधर कितना? 2 फास्फोरस है, 2 फास्फोरस निकल गया बाहर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आगे के स्टेप में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तब बनेगा जब ये सिंगल C3 साइकिल होगा. ये कुल 6 रिपीटेड साइकिल है, तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है. तो इससे क्या होगा? कुल 12 मॉलिक्यूल, 6 बार रिपीट होगा तो कुल 12 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो. 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनने के बाद 10 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर से सिस्टम में आ जाएगा. 10 molecule of phosphoglyceraldehyde
फिर से क्या आ गया सिस्टम में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl ये इन्वॉल्व हो गया किसमें, ग्लूकोज के सिंथेसिस में। ठीक है, तो होगा क्या कि इससे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल में वैसे भी 6 कार्बन 2 फास्फोरस होते हैं, तो ये 2 फास्फोरस निकल गया तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाएगा ग्लूकोज। ये कब होगा, जब ये 6 बार होगा, ओवरऑल C3 साइकिल 6 टाइम होगा। एक बार होगा तो ओनली 1 साइकिल में 1/6 ग्लूकोज बनता है, और ये 1/3 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये 1/3 मॉलिक्यूल PgA बाहर निकलता है, यानी कि कुल 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 2 PgAl आएगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का इन्वॉल्व होता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के सिंथेसिस में। ठीक, अब बचे हुए 10 मॉलिक्यूल कब, जब ये 6 रिपीटेड साइकिल होगा तब 10 मॉलिक्यूल, अदरवाइज एक रिपीटेड साइकिल में कुल कितना फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बचेगा, 5/3। ठीक है, 5/3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 10 आएगा। तो ये अगर एक पे अगर चेक कर रहे हैं तो 5/3 PgAl, अगर 6 को ले रहा है, 6 साइकिल को ले रहा है तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl। अब इसकी कंडीशन को मैं बता दे रहा हूं, यहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। प्रोसेस इन विच द एसिड रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड इज नोन एज रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो 10 मॉलिक्यूल बचा था कब, जब ओवरऑल 6 रिपीटेड साइकिल होगा तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बचेगा। 10 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या है, यही कुल 10 मॉलिक्यूल। एक में कुल कितने 3 कार्बन, 10 में 30 कार्बन और प्लस कितना 10 फास्फोरस। इसमें क्या होगा, इसमें 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे। 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, तो 5 कार्बन का कंपाउंड बना देगा। 5 कार्बन का कंपाउंड बना देगा, कितना 6 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलेंगे RUMP, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट लिख दे रहे हैं, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट बना दिया, यानी कि 5वें नंबर पे एक फास्फोरस दिखेगा। वो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 6 मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कुल 5 कार्बन, तो 6 मॉलिक्यूल में कुल कितने कार्बन, 30 कार्बन। एक मॉलिक्यूल में एक फास्फोरस, 6 मॉलिक्यूल में 6 फास्फोरस। अगर ये एक साइकिल होगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे ध्यान दें, ओनली 1 साइकिल है तो 6 रिपीटेड साइकिल है ना, एक साइकिल के लिए कितना बचा हुआ फास्फोरस है, ये 5/3 PgAl फॉर 1 साइकिल, और ये किसके लिए है, 6 साइकिल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, 6 साइकिल के लिए कितना 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल रहा है। 1 साइकिल के लिए कितना बाहर निकलेगा, 1 साइकिल के लिए 2/3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा। इतना ध्यान रखिए, एक को भी याद रखना। अब आगे 30 कार्बन 6 फास्फोरस वाला रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, ये वेट नहीं करेगा, इसके बाद ATP ब्रेक होगा। कितना मॉलिक्यूल, एक साइकिल होगा तो एक ATP ब्रेक होगा, एक ADP में ब्रेक होगा, एक साइकिल होगा। अगर 6 रिपीटेड साइकिल होगा तो 6 ATP 6 ADP में ब्रेक होगा। ठीक है, ये याद रखना है। जब 6 ATP 6 ADP में ब्रेक होगा तो ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंट्रीब्यूट करेगा, और वो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, इसके पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे कार्बन आ गए। एक RUBP में 5 कार्बन, 6 RUBP में 30 कार्बन, एक RUBP में 2 कार्बन, 6 RUBP में कुल 12 कार्बन, एक RUBP में 2 फास्फोरस, तो कुल 6 RUBP में 12 फास्फोरस, यानी कि ये 30 और 12 कहां से आया, 30 कार्बन तो था ही,
ये 6 फास्फोरस और प्लस ये 6 फास्फोरस, ये 12 फास्फोरस। शुरुआत में देखा था अगर एक साइकिल होगा तो एक RuMp से 1 साइकिल में क्या होगा, 1 RuMp बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 साइकिल से क्या बनेगा, 1 RuMp बनेगा, ठीक है। एक RuBp बनेगा, एक RuBp बनेगा। तो 6 रिपीटेड साइकिल है तो 6 RuBp बना। शुरुआत में जो केमिकल इस्तेमाल हुआ था, जो कंपाउंड इस्तेमाल हुआ था, वो RuBp ही था। इस वजह से इसको हम ये बोलते हैं रीजनरेशन। सो व्हाट इज एक्चुअली रीजनरेशन? द प्रोसेस इन विच समथिंग गेट रीसिंथेसाइज्ड। What thing get resynthesized? The RuBp get resynthesized. Further, after getting carbon dioxide, the RuBp involved in the process of the PGA formation, and this process remain continued, and the continuous synthesis of glucose occurs. 6 times C3 साइकिल होगा तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ये याद रखना। बाकी एक साइकिल में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 1/6, ये सबको याद रखना है। ओवरऑल नेट इन एंड आउट अगर काउंट करना है कि कितना एटीपी इन हो रहा है, कितना एटीपी आउट हो रहा है, तो ध्यान दो कुल जो है ओवरऑल रिएक्शन काउंट करोगे तो पहली बार में अगर 6 रिपीटेड साइकिल होगा तो 12 एटीपी फर्स्ट राउंड में और 6 एटीपी ये कुल 18 एटीपी इन होगा, 18 एटीपी आउट होगा, ठीक है। 18 एटीपी इन होगा, 18 एटीपी आउट होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद क्या जानना है कि NADP कितना इन होगा, कितना आउट होगा। ध्यान से सुने, NADP इन कितना होगा, शुरुआत में देखा था कि 12 मॉलिक्यूल NADP इन हुआ था, NADPH इन हुआ था, और कितना आउट हुआ था, NADP पॉजिटिव आए 12, तो वही रह जाएगा 12 मॉलिक्यूल इन और 12 NADP पॉजिटिव आए आउट। ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आउट होगा। दैट इज ओवरऑल इन एंड आउट समरी। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। थैंक यू।